اس کے بعد انشاءاللہ صفا بیت المال شاخ بنگلور کی سالانہ کارکردگی سنائی جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ بنگلور میں صفا بیت المال کی جو شاخ قائم ہے اور اس کا آفس فریزر ٹاؤن میں موجود تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک خاتون کے تعاون سے کابل بیرسندرا میں ایک عمارت ہم کو ملی ہے، اور جس عمارت میں سارے کام کاج اس وقت میں انجام دی جا رہے ہیں۔ آفس بھی وہی ہیں، گودام بھی وہی ہیں، اور ٹیلرنگ سینٹر بھی وہی قائم ہے، اور آگے انشاءاللہ اور بھی وہاں عزائم میں انشاءاللہ کیے جائیں گے۔ ہمارے بنگلور سے تشریف لائے مولانا محمد الیاس صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ الیاس علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور صفا بیت المال شاخ بنگلور کی سالانہ کارکردگی کو ہم سب کے سامنے رکھیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم صدر جلسہ اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور مہمانان خصوصی اور شاخوں سے آئے ہوئے صدور اور ان کے رفقا اور خدمت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال شاخ بنگلور کی رفاہی خدمات پر ایک نظر۔ گزشتہ سال صفا بیت المال کا جو دفتر رہا وہ فریزر ٹاؤن میں رہا۔ رمضان کے بعد اس دفتر کو جو ایک ماں صاحب نے ہمیں ایک جگہ دی ہے اس پر منتقل کر لیا گیا ہے۔ اب وہاں پر ہمارے پورے کام چل رہے ہیں، جس میں گودام بھی ہے اور آفس بھی وہی ہے، اور ٹیلرنگ سینٹر جو رمضان کے بعد شروع کیا گیا تھا اس میں الحمدللہ چل رہی ہیں۔ بنگلور میں زیادہ تر جو کام ہو رہا ہے وہ میڈیکل کیمپ ہے۔ صفا بیت المال شاخ بنگلور کے زیر اہتمام بنگلور کے مختلف سلم علاقوں میں 149 مفت میڈیکل کیمپ منعقد کی گئے، جس سے 32,934 مریضوں نے فائدہ اٹھایا۔ ہمارے پاس 2 ڈاکٹر ہیں، ایک فارماسسٹ ہے۔ سلم علاقوں کا دورہ کیا جاتا ہے، وہاں پر میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے۔ مریض بے چینی سے انتظار کرتے ہیں کہ صفا بیت المال کے ڈاکٹرز کب آئیں گے اور دوائی کب ہمیں ملے گی۔ گزشتہ دسمبر کے مہینے میں تو 30 روزہ پروگرام حیدرآباد میں چل رہا تھا۔ بنگلور سے ہم 3 احباب وہاں گئے تھے، تو وہاں سے آنے کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمارا علاقہ جس محلے میں ہماری آفس ہے، گودام ہے، ٹیلرنگ سینٹر چل رہا ہے، اس کو ہم لے کر سروے کیا جائے۔ ہم نے جب سروے شروع کیا تو اس میں معلوم ہوا کہ 50 مساجد ہیں ہمارے علاقے میں۔ تو ہم نے گزشتہ ماہ میڈیکل کیمپ ادھر ادھر دینے کے بجائے ہمارے ہی محلے میں 15 میڈیکل کیمپ کیے، اور ہر میڈیکل کیمپ میں ہم لوگ، میں بھی، ہمارے آفس انچارج مولوی نعمان صاحب ہیں، ہم وہاں جا کے سروے کیے تو اتنی ضرورت محسوس کی ہم نے۔ ہم لوگ کوئی ہائر اینٹی بائیوٹک دوائی نہیں دیتے، مختصر سی معمولی دوائیاں دیتے ہیں۔ اب اس مرتبہ ہم نے جو کھانسی کی اور سردی کی جو دوائی ہے وہ 5 لیٹر کا جو کین آتا ہے وہ لے کر گئے ہم لوگ۔ تو ہمارے پاس جو خالی ڈبے خریدے تھے وہ خالی ڈبے ہمارے پاس ختم ہو گئے، تو عورتیں اس دوا کو لینے کے لیے اپنے گھروں کو 1-1 کلومیٹر تک جا کر خالی بوتل لے کر آ کر اس دوائی کو لے کر گئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کتنی ضرورت مند ہوں گی یہ عورتیں، اپنے بچوں کو 1-1 کلومیٹر سے لے کر آ کر اس دوائی کو لے کر جاتی ہیں، اور بتاتی ہیں کہ یہ اس دوا میں پتہ نہیں کن بڑوں کی دعا ہے کہ پلاتے ہی بچوں کو شفا ہو جاتی ہے۔
बहरहाल ये 32,334 मरीजों ने इससे फायदा हासिल किया है, जिसमें 4,65,000 रुपये खर्च आए हैं। हजरत मौलाना शफीउद्दीन साहब नदवी क़िबला दामत बरकातहू तशरीफ लाए हैं। हम हजरत का अहलन व सहलन पुरतपाक इस्तक़बाल करते हैं। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। इसी तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फसीहुद्दीन नदवी साहब क़िबला दामत बरकातहू की तशरीफ लाए हैं। हजरत का भी हम पुरतपाक इस्तक़बाल करते हैं और अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। इसके अलावा मेडिकल कैंप के अलावा जिन घरानों में 2 से ज़ायद माजूरीन हैं, ऐसे 5 खानदानों की हर महीना फी खानदान 2,000 रुपये और गरीब बेवाओं में माहाना वज़ाई और हस्ब ज़रूरत नक़द रकम और कपड़ों वगैरह के ज़रिए से इमदाद की गई है, जिसका जुमला खर्च 1,30,000 रुपये है। 30 से ज़ायद ऐसे मरीज जो मुख्तलिफ बीमारों के शिकार थे, कैंसर, डायलिसिस, इन्हीं इलाज और मुआलजे के लिए तकरीबन 51,000 रुपये सफा बैतुल माल शाख बेंगलुरु से जारी किए गए। 6 मुस्तहिक़ गरीब और यतीम लड़कियों की शादी के लिए तकरीबन 34,000 रुपये जारी की गए, जिसमें गुज़िश्ता माह एक गरीब लड़की की शादी के लिए 10,000 रुपये की सफा बैतुल माल शाख बेंगलुरु ने इमदाद की है। सूद की लानत से बचाने की गरज से 2 अफराद को कारोबार के लिए बिला सूदी कर्ज रकम अदा की गई है, जिसमें एक जनाब मोहम्मद सादिक साहब हैं जो सूद में डूबे हुए थे, उनको 5,000 रुपये रकम दी गई। एक और साहब मोहम्मद शफीउल्लाह साहब हैं, इनको भी रकम दी गई। तो उससे जो है वो कर्जा भी अदा किए और सूद से भी बच गए। इसके अलावा मुख्तलिफ हालात व हादिसात का शिकार अफराद के लिए 19,000 रुपये जारी किए गए। 4 गरीब तलबा को स्कूल फीस के तौर पर 21,000 रुपये जारी किए गए। माह रमज़ान मुबारक के मौके पर 30 मोहल्लों में 550 गरीब खानदानों में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। जो रमज़ान राशन तकसीम किया गया वो फिज़ा टाउन की ऑफिस में ही तकसीम किया गया, जिसमें हज़रत मौलाना मुमताज़ अली साहब रशादी मेरे बड़े भाई हैं दामत बरकातहू, उनको जब मैं फ़ोन पर बोला तो वो तशरीफ़ लाए। और उनके अलावा पिंचिल मोहल्ले की मस्जिद में हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब हैं, उनको भी फ़ोन पर दावत दिया तो वो भी आए। पहले मरहले में हमने 200 घरानों में राशन तकसीम किया। ये पैकेज की कीमत 1,700 रुपये हमने रखी थी। तो दूसरे मरहले में जहाँ पर हमारा गोदाम है वहाँ पर हमने 200 पैकेजेस वहाँ दिए। फिर हमारे मजलिस उबैदिया है जिसके जिम्मेदार हज़रत क़ारी मोहम्मद हमजा यूनुस उबैदी दामत बरकातहू हैं, मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं वो। उनके मजलिस में भी 50 पैकेजेस वहाँ तकसीम किए गए। तो जुमला इस राशन में 7 लाख रुपये खर्च किए गए। ईद उल अज़हा के मौके पर 8 मोहल्लों में 1000 गरीब खानदानों में 13 बड़े जानवरों की कुर्बानी का गोश्त भी तकसीम किया गया। कुर्बानी का गोश्त जो तकसीम किया गया हमारे डीचे हल्ली में और कावल बेसदा के इलाके में पहले दिन जब कुर्बानी की गई गोश्त पहुंचने में ताख़ीर हो गई। मगरिब के बाद जो है गोश्त लेकर निकल गए। हमारे मौलवी नौमान साहब ताख़ीर से पहुंचे और हमारे हाफिज निसार साहब है ड्राइवर और ताख़ीर से पहुंचे। मगरिब के बाद गोश्त लेकर निकले तो ट्रैफिक जाम थी। पहुंचते पहुंचते तकरीबन 9 बज गए। तो 9 बजे तक भी 100 औरतें गोश्त के इंतजार में बैठी रही। जब हम लेकर गए तो गोश्त लेकर बैतुल माल के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करके उस औरत ने गई वहाँ से। बहरहाल ये 1000 खानदानों में गरीब खानदानों में कुर्बानी का गोश्त भी तकसीम किया गया। मौसम सरमा में जो सर्दी से फिकर रहे होते हैं ऐसे 100 अफराद के लिए ब्लैंकेट भी तकसीम किए गए। इसके अलावा इस साल जो है हमने सफा टेलरिंग सेंटर जो शुरू किया है मरकज़ की निगरानी में और मरकज़ के ताउन से, ये जो जितने भी काम हो रहे हैं हज़रत मौलाना गयास अहमद साहब रशादी दामत बरकातहू और नायब सदर हज़रत मौलाना अब्दुल मोहम्मिन कासमी दामत बरकातहू, इन हजरात की और वहाँ के ट्रस्टियान की निगरानी में ये काम चल रहे हैं। तो सफा टेलरिंग सेंटर का जो क़ियाम अमल में आया इसमें भी हज़रत मौलाना गयास अहमद साहब रशादी और हमारे अब्दुल मोहम्मिन साहब तशरीफ़ लाए थे। इन्हीं के हाथों से ये इफ्तिताह अमल में आया। 4 माह का कोर्स हमने रखा था। 4 माह में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 23
तालिबात ने 13 जो औरतों के जो सिलाई के ये होते पैटर्न्स होते हैं उसको सीख कर जब आखिरी वक्त था तो हमने उनको इनामात से नवाजा। पहला इनाम 4 माह होने के बाद एक मुमतहिना को बुलाए थे इम्तिहान देने के लिए, उसमें जो है अव्वल सुबम जो कामयाब होने वाले थे उनको इनाम से नवाजा गया। फिर बाबरती से आने वालों के लिए एक अवार्ड दिया गया। और इसके अलावा जो इन औरतों का एक तकाजा था कि हमें दीनी तालीम दिलवाई जाए, उसका भी इंशाअल्लाह मदरसे का आइंदा इरादा है। दुआ फरमाएं मदरसे का क़ियाम भी अमल में आए। तो इसके लिए हमने ये तरकीब इख्तियार की, आज दिन में या 15 दिन में कि किसी आलिम को बुलाएं, उनके ज़रिए से जो है कुछ आधा घंटा जो दीनी तरबियती इस्लाही बयानात हो। तो इस सिलसिले में कई उलमाए किराम की हमने रहनुमाई की। हज़रत मौलाना अफजल साहब कासमी दामत बरकातुहुम को भी बुलाए थे। फिर हमारे भाई हज़रत मौलाना मुमताज़ अली साहब रशादी दामत बरकातुहुम। इसी तरह मुख्तलिफ उलमाए किराम आते रहते हैं और इस टेलरिंग सेंटर में जो है क्या कहते हैं इस्लाही बयानात देते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है जब ये इख्तिताम हुआ तो ये दिन टेलरिंग सेंटर को छुट्टी थी। उसके बाद फिर दूसरे दिन जो है इतवार का दिन हमने जलसा किया, इनामत तकसीम किए। पीर का एक दिन छुट्टी रही। मंगल के दिन जो है हमारे पास फिर 50 औरतें हाजिर हो गई, 50 एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। अब 25 औरतें जो है टेलरिंग सेंटर में हैं और एक बैच करने का इरादा है। तो जगह की खिदमत होने की वजह से हमने अभी फिर रोका रखा है। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में दूसरी बैच का भी क़ियाम अमल में आएगा। और खतने का इंतज़ाम भी हर साल हमारे अलहाज अब्दुल सलाम साहब हैं हमारे मोहल्ले के, मैं जिस मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ वहाँ के जिम्मेदार हैं, वो अपनी जानिब से हर साल बच्चों का खतने का इंतज़ाम भी करते हैं। ये वो अपनी जानिब से करते हैं लेकिन सफ़ा के बैनर तले करते हैं। एक नौजवान है अब्दुल्ला नामी, उसको आज से 8-9 साल पहले इस्लाम कबूल करवाया गया था, उसका अभी तक खतना नहीं हुआ है। उसकी शादी होने वाली है। अब इंशाअल्लाह वो 2-4 दिन कबल जो है मुझसे आकर कहा कि मुझे खतना करवाना है हज़रत, तो उसका भी इंशाअल्लाह खतने का इंतज़ाम हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह 1 माह या 2 माह में उसका शादी का भी इंतज़ाम हो जाएगा। दुआ फरमाइए। ये हमारी सफा बैतुल माल शाख बेंगलुरु की खिदमत रही है, जिसमें हज़रत की निगरानी ही में चल रहा है। हज़रत की सरपरस्ती में ये बेंगलुरु का इदारा चल रहा है। बेंगलुरु के हालात फिल वक्त अच्छे नहीं हैं। जैसा ताउन होना चाहिए उस तरह ताउन नहीं हो रहा है। काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की सरपरस्ती में चल रहा है। कुछ कर्जा लेकर काम किया जा रहा है, तकरीबन 1.5 लाख का कर्जा बेंगलुरु शाख बेंगलुरु पर अभी बोझ पड़ा हुआ है। आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हमारी इन खिदमत को कबूल फरमाए। और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, अगर मीडिया वालों तक मेरी बात पहुँच रही है तो ये बता दें कि ये खिदमत खल्क़ की जो तंजीम है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई तंजीम नहीं है। जितने भी अहबाब हैं, जितने भी हजरात हैं, इस तंजीम से जुड़कर खिदमत अंजाम देने की कोशिश करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे हाफिज़ इलियास अली साहब जो सफा बैतुल माल शाख बेंगलुरु के सदर हैं और उन्होंने अपनी खिदमत को सामने रख रखा। महीने में 10 मेडिकल कैंप होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु में सफा बैतुल माल शाख। एक कैंप लगाना भी कितना बड़ा काम होता है आप समझ सकते हैं। हैदराबाद में रोज़ाना एक मेडिकल कैंप लगता है, 26 मेडिकल कैंप हैदराबाद में रखते हैं रोज़ाना, दवाओं के साथ फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसिन। और बेंगलुरु में 10 मेडिकल कैंप हर महीना रखते हैं। और भी माशाल्लाह शाखों के अंदर मेडिकल कैंप लग रहे हैं। अल्लाह ताला इन दवाओं की बात को कबूल फरमाए। और एक बात यह कि बेंगलुरु में ऐसे 5 खानदानों को तलाश किया गया है। हैदराबाद में तकरीबन 25 खानदान ऐसे हैं जिसमें एक ही घर के अंदर 2 से ज़्यादा माजूर है। ये अहम तरीन काम है, एक ही घर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा माजूर खानदान हो और उनका कोई जो है पुरसाने हाल ना हो, कोई कमाने वाला उस घर में ना हो। ऐसे घरानों की हम कफालत ले रहे हैं। बेंगलुरु में भी उनका अकाउंट खोल दिया गया है और डायरेक्ट उनकी अकाउंट में किसी को 2000, किसी को 1500, किसी को 3000 भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको दे रहे हैं। ये अहम तरीन काम है। तमाम शाखों में भी मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी शाख में जहाँ जहाँ इलाके आपके हैं वहाँ सबको बोलकर छोड़ें कि जहाँ कहीं भी 2 से ज़्यादा माजूर है, हिम्मत से कहिए कि हम उनकी कफालत देंगे। असबाब अल्लाह पैदा करने वाले हैं इंशाअल्लाह।
اور بنگلور کے اندر بھی 5 ایسے خاندان ہیں جن کی کفالت جاری ہے، ہر مہینہ ان کو 2000 روپے الحمدللہ ان کو دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ خدمات چل رہی ہیں ہماری۔